you all have already shot for the episodes, but what was the advice that you would give to the contestants? She is short the episode, I'm not. I'm shooting tomorrow. What were the advices that you all would give to the contestants? I did it on the day of the episode also. मैंने उनको यही कहा था कि I mean, see, whether a contestant is good or not, I think the main decisions I was leaving to the senior judges, which is Victor Sir and Sonali. I was more advising them on my personal experience कि अगर आप ऐसा set पे करो तो क्या होगा. So my advice was actually according to whichever contestant came. But overall, I think if the contestant is good, then I would say, okay, stick to this, really make time out for this, and run after it, because that's what I did in my life. And if the judges feel that no, you do not have a future in films, then please do not leave your current jobs or घर वर छोड़ के मत आ जाना, ऐसा कुछ मत कर देना. So we were giving very real advice, is what I think. I think I'll be empathizing with the contestants completely because I've gone through the grind. I've been there, done that. Backstage में जो butterflies होती हैं, जब आप stage पे जाने वाले होते हो, दो तरह के auditions होते हैं. एक audition जब आप किसी casting director के पास जाते हैं, you have to hold a flag, your name, height, right profile, left profile, straight profile, वो अलग होता है. एक स्टेज पे ऑडिशन होते हैं वो अलग होते हैं. रियलिटी शो में जितने कर चुका, आई कैन कॉल माय सेल्फ एज अ रियलिटी शो एक्सपर्ट. जितने ऑडिशन, जितने रियलिटी शोज में मैं जा चुका हूँ, जितना रिजेक्शन मैंने फेस किया उतना शायद किसी ने किया हो, और मैं उनके साथ बिल्कुल एम्पैथाइज कर पाऊंगा. सो आई थिंक आई कैन बी देयर फ्रेंड, देयर पार्टी फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, व्हाटएवर, एंड आई विल बी विद देम. Okay, and this is just one question. I just want a reaction from the two of you. How important do you think is road safety for the youth today? Road safety. I think that's very irrelevant. We need to move on to more questions. Hello everyone. My question is for Ayushman. Yeah. Hi. Hi Ayushman. So basically this show is based on talent, correct? So, and you belong to a non-filmy background. So my question is basically, right now in Bollywood, what does it matter exactly? Talent or filmy connection? Whatever you are right now, it's totally because of talent, correct? So right now in Bollywood, what is going on basically? Filmy background connection or talent? A lot of filmy people are very talented, probably more talented than me. I think it's difficult to generalize that, but I think it's also the opportunity. You should get the right opportunity, being at the right place at the right time. And I think this is the age where it's open to all. It's beyond nepotism. Even if you're decently talented, you have the potential to be an actor on the silver screen if you get the right opportunity. That's it. I would really like to say something, please. Sorry. I just wanted to say that whether you have a filmy connection or not, you have to be talented. I'll tell you why. Because your mothers and fathers are not watching the film and buying those tickets. It's the audience. And audience doesn't care who your father or mother or sister or brother is. So I think only talent counts in this industry, nothing else. Absolutely. Very well said. Ayushman, hi. Guys, This is we're gonna have to wrap Salman the here Q&A from... now. Anush, one second, please. Yeah. Hi, We Salman, how are waited you? 2 hours, yeah. Okay. Can I? Yeah. Awesome. Okay. Ayushman, do you think कि एक शो में ऑडिशन करने से, एक विनर बनने से आपको करियर में बहुत कुछ फायदा आगे हो सकता है? You agree on this? मुझे लगता है काफ़ी ऐसे भी एक्टर हैं या फिर ऐसे परफॉर्मर्स हैं स्क्रीन पर जिनको रिजेक्शन ज़्यादा मिली है एक्सेप्टेंस से. मुझे ज़्यादा रिजेक्शन मिली है लाइन. एक टैलेंट शो जीता है, वो एक रियलिटी शो जीता है, वो रोडीज है, उसका टैलेंट से कोई लेना देना नहीं. इनफैक्ट वो एक्टिंग टैलेंट से कहा वैसे भी टैलेंट, हाँ, परफॉर्मिंग टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है. ऑफकोर्स वो एडवेंचर शो है, आप या फिर अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप डायनेमिक्स में कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके ऊपर बेस्ड है. तो मुझे लगता है कि हाँ, टैलेंट शो से ऑफकोर्स अगर आपको राइट अपॉर्चुनिटी मिलती है या फिर अगर आप उस मोमेंट पर क्लिक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप थोड़ा सा वीक पड़ जाते हैं स्टेज पर कि आप अच्छा गाना ना गा पाए, अच्छी एक्टिंग ना कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप टैलेंटेड नहीं है. एक परिस्थिति में, सर्कमस्टेंस में हो सकता है कि आप नर्वस हैं, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए. आई थिंक वहाँ पे एक डेस्टिनी या लक भी मैटर करता है. तो मुझे लगता है इट्स क्वाइट वेग, इट्स क्वाइट रैंडम, इट्स रैंडम वर्ल्ड. ये आर्टिस्ट का बहुत सब्जेक्टिव रिलेशनशिप होता है परफॉर्मेंस के साथ. तभी विक्टर जी ने जैसे बोला था कि आप एक्टिंग को गेज नहीं कर पाते, सिंगिंग को शायद फिर भी कर पाए, डांसिंग फिर भी कर पाए. टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर शो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेज. आई थिंक जजेस को बहुत मुश्किल होने वाली है विनर सेलेक्ट करने की. Parinit, do you think कि लक मैटर करता है आपके हार्ड वर्क के साथ भी इस करियर में, इस इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए? लक मैटर करता है नहीं? हाँ, डेफिनेटली. आई थिंक एक अमैल्गमेशन होता है हर चीज़ का.
क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब आपको एक्टिंग से प्यार हो जाता है, एज एन एक्टर आप 100 फिल्में करना चाहते हैं, लेकिन अगर ऑडियंस आपसे बोर हो गई है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। एंड आई थिंक ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो लोग एक्टिंग करना चाहते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है बिकॉज लोग उनकी टिकट नहीं खरीदते। तो आई थिंक वो लक होना चाहिए, वो प्यार होना चाहिए ऑडियंस में आपके लिए। हार्डवर्क डेफिनेटली, आप हार्डवर्क नहीं करेंगे आपका कुछ नहीं होगा। तो एक आई थिंक एक अमेलगमेशन होता है हर चीज़ का, एंड बस फिर ऊपर वाला आपका ध्यान रखिए। परिणीति मेरा Friends, if we are looking at doing any group interactions, we cannot continue with the open forum Q&A. So we are going to try and make them available to you only if the Q&A ends now. Alright? So before we proceed, ज्योति फ्रॉम 9XL, मेरा सवाल आपसे है Juhi, कि this is in the best interest of the entire lot here. So we'll have to end the open forum Q&A now. One last question from us. This is the last question. ओके, परिणीति आपको अपना पहला रिजेक्शन और पहला ऑडिशन याद है और क्या फीलिंग थी उस समय? जी एक्चुअली मैंने लाइफ में एक ही ऑडिशन दिया है, वो रिकी बेल के लिए था और मुझे पता नहीं था कि वो ऑडिशन है मेरा, और उसमें मैं एक्सेप्ट हो गई थी। तो टचवुड अभी तक उसमें रिजेक्शन नहीं मिला है। तो Okay. Friends, before we proceed into the group interactions, there's a very cute photo op that we have with our artists here. Can I please have the clapboard immediately brought onto the stage? Thanks, guys. I will just laugh. चलो बैठे रहो। मैं अभी से बता रही हूँ, मैं ये घर लेके जा रही हूँ, अभी से बोल चुकी हूँ मैं। I've called it now, guys. रानी। She's managing to keep this in the car. ओ मोबाइल नीचे, मोबाइल नीचे हो गया, स्टूल वाले नहीं उठ रहे, मोबाइल क्या है? Thank you so much, guys. Now we're going to have Parineeti at the head table here on the right hand side. So all those. So, yes, Parineeti, you can take it home. Parineeti, we're going to have you at the front table over here, the head table. While Ayushman stays on stage, please. The electronic media is requested to immediately come to the stage for a group by. The electronic media is requested to come on stage for a group by with Ayushman. आपके सामने जब ये पहला प्रपोजल आया था तब व्हाट वाज योर रिएक्शन कि आपने किस तरह से? इनफैक्ट ये प्रॉपर प्रपोजल नहीं है, ये 2 एपिसोड्स के लिए मैं और परिणीति एज अ फ्रेंड जा रहे हैं, एज अ बडीज जा रहे हैं कंटेस्टेंट्स के लिए, और काफ़ी अच्छा लगा था क्योंकि ये मेरा ऑलमोस्ट पहला रियलिटी शो था जिसमें मैं रिजेक्ट हुआ था। तो अब मैं उसमें एज अ मेंटोर, एज अ जज या फिर एज अ फ्रेंड वहाँ पर जा रहा हूँ। इट फील्स ग्रेट। रिजेक्शन इतनी मिल चुकी है लाइफ में कि डरना बंद हो चुका हूँ मैं फियरलेस हो चुका हूँ बिल्कुल। तो मैं रिजेक्शन से बिल्कुल नहीं डरता हूँ। आई एम प्रीटी नम टू सक्सेस एंड फेलियर। जब आपको रिजेक्ट किया गया था, आपको लगता है कि आप आई थिंक टैलेंट, आप जैसे आप ग्रो करते हैं वैसे टैलेंटेड बनते हैं, और जितना आप परफॉर्म करते हैं, जितना आप में रियाज होता है एक्टिंग का, सिंगिंग का, डांसिंग का, आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस यू डू। जिस तरह से आपके साथ हुआ था, आज आप स्टार्स हैं, आप इसमें स्टार हैं, प्लेटफॉर्म आज मिल रहा है, तो कुछ जो जजेस हैं उनको कुछ बोलेंगे ताकि इंसाफी ना हो जो आपके साथ? आई थिंक राइट नाउ ऑडियंसेस आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट, जो कंटेस्टेंट्स हैं बहुत फॉर्चुनेट है, बिकॉज देव गॉट एरे ऑफ रियलिटी शोज जो जिसमें वो अपना टैलेंट परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ ना कुछ अपने लिए कर सकते हैं। आप ये देखेंगे जो टैलेंटेड कंटेस्टेंट्स दूसरे रियलिटी शो में थे वो इवेंट्स के जरिए काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं, एंड दे डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स। आई थिंक ये रियलिटी शो जो है काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं बहुत टैलेंटेड लोगों को।
जॉन जिस तरह से एक्टर से प्रोड्यूसर बने, अगर ये शो खत्म होते होते इसका विनर अगर एक्टर बनता रहा, प्रोड्यूसर साइन करेंगे? यार अभी मैं खुद सीख रहा हूँ एक्टिंग, सिंगिंग, ये अभी मैं प्रोड्यूसर बनने में बहुत देर है। रियलिटी शोज में से जो लोग मेरी गलती है हर कोई आप जितना सक्सेसफुल बन पाए, तो जो फॉर एग्जांपल टॉप 10 जो कंटेस्टेंट्स आते हैं, आपको लगता है जो बाकी लोग हैं, बाकी के 9 कंटेस्टेंट्स हैं, उनके लिए क्या जगह बचती है? आई थिंक कभी कभी हम थोड़ा एग्जैजरेट कर देते हैं रियलिटी शोज़ में। कभी कभी ये होता है कि आप खुद अपने आसपास एक लाला लैंड बना लेते हैं, एक वर्ल्ड बना लेते हैं, वे यू थिंक दैट यू आर समबडी, यू आर सुपरस्टार। ऐसा आपको सोचना नहीं चाहिए। आई थिंक इट चेंजेस एवरी ईयर, इट चेंजेस एवरी डे। आपकी किस्मत हर रोज़ बदलती है, आप अपने परफॉर्मेंस के ज़रिए लोगों को कम्युनिकेट करते हैं। आई थिंक इट्स वेरी रैंडम इन अ वे। तो आपको आई थिंक यू शुड हैव अ स्टेबल माइंड व्हेन यू इन अ रियलिटी शो। आपको ये याद रखना चाहिए कि हो सकता है रियलिटी शो खत्म करने के बाद आपको पूछे ही ना। सो इट यू हैव टू हैव दैट सैनिटी। Ayushman, but you know, eventually it's a reality show, and not everyone of whoever participates will make it big in the industry. There's only 1 in a million who would get selected. Is that one lucky one? So it is no matter what it is. I think now it the is reality. In fact, there are a lot of reality shows as well. I think अगर आप एक reality show में reject होते हैं, आपके पास 10 और होंगे। लेकिन this particular reality show it's very unique, it's one of its kind, क्योंकि acting का reality show नहीं होता। एक्टर्स जो है वो काफ़ी सब्जेक्टिव होते हैं, एक्टिंग सब्जेक्टिव होती है, तो गेज करना मुश्किल हो जाता है कि आप कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी यूनिक रियलिटी शो। Ayushman, even if it's one of a kind, the harsh reality eventually will come into picture, whereas not everyone will make it big. So don't you think that reality somewhere affects the... आई थिंक दिस इज़ रियलिटी एज वेल। आपकी लाइफ में भी ऐसा होता है, एवरीबडी कैन नॉट बी अ सुपरस्टार। आई थिंक अब आपके हाथ में कि आप एक्टर बन जाओ, सुपरस्टार आप बनोगे कि नहीं बनोगे ऊपर वाले के हाथ में या फिर जनता के हाथ में। आयुष्मान कहते हैं कि अगर इंडस्ट्री में गॉडफादर ना हो तो इतनी जल्दी से सक्सेस नहीं मिल पाता। अगर आउट ऑफ 10 में आपसे मार्केट में पूछूं तो टैलेंट और गॉडफादर को कितने मार्क्स देंगे? आई थिंक इट्स बिट ऑफ बोथ। आई थिंक मोर देन गॉडफादर, आई थिंक मुझे लगता है कि टैलेंट और अपॉर्चुनिटी ये दोनों एक साथ जाने चाहिए। काफ़ी एक्टर्स हैं, काफ़ी सुपरस्टार्स हैं जो विदाउट गॉडफादर यहाँ पर आए थे इंडस्ट्री में, और अभी तक सुपरस्टार्स हैं वो। आई थिंक यू जस्ट नीड दैट गाइडेंस ईदर फ्रॉम योर पेरेंट्स। योर गॉडफादर कैन ऑल्सो बी योर टीचर, योर फ्रेंड, एनीबडी कैन बी योर गॉडफादर। आयुष्मान, एक थोड़ा हटके सवाल है, बजट आ रहा है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन? Listen, I was never in. I've studied English literature. I have no idea about the budget. I have no idea about the economy. But apart from that, I think. आम जनता महंगाई इतनी बढ़ रही है, अगर आप कहीं बाहर निकलते हैं किसी चीज़ के लिए, कुछ खरीदते हैं, तो आप क्या सोचते हैं आपके लिए बजट कितना ज़रूरी है? अगर एंटरटेनमेंट की भी बात करें, having said that I have no idea about the economy, but इतना मैं जानता हूँ कि आम जनता को के लिए बजट होना चाहिए। उसके अलावा बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको बजट का फ़र्क नहीं पड़ता है। आई थिंक जो ऊपरी तबके के लोग हैं, हाई क्लास सोसाइटी के लोग हैं, उनको बजट का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, पर आम आदमी को ज़्यादा पड़ता है। आई थिंक इट शुड बी प्रो कॉमन मैन, ऑलवेज शुड बी प्रो कॉमन। हाँ, अरे बता दिया वो लक था क्या अच्छा हुआ या बुरा हुआ? Okay, Ayushman, I just need a reaction. जब कोई स्टार्स किसी भी कंट्रोवर्सी में फंसता है या केस में फंसता है, आपको लगता है वो स्टार्स है और सेलिब्रिटी इसलिए उसको ज़्यादा हाइप किया जाता है? आई थिंक दिस इज़ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। अगर आप स्टार हैं, आपको अपलॉज भी बहुत ज़्यादा किया जाएगा, एट द सेम टाइम क्रिटिसाइज भी बहुत ज़्यादा किया जाएगा। आई थिंक यू शुड बी रेडी फॉर दैट, और ऐसा होता है कि इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट ऑल्सो। आयुष्मान, अपैरेंटली हमारा बजाज हैज बीन शेल्फ जो I think you'll be hearing about it very soon. Okay, and you've been learning a lot of Bhojpuri things, right? Yeah. कितना सीखे आप? काफ़ी कुछ सीख लिए। वो आपको भोजपुरी में ऐसा कुछ खड़ी बोली है, भोजपुरी नहीं है, वेस्टर्न यूपी की बोली है, तो इट्स नॉट एग्जैक्टली भोजपुरी। वो बिहार की तरफ नहीं है। ऋषिकेश हरिद्वार में जो बोली जाती है वो वाली भाषा है। तो सिंस आई एम गुड विद हिंदी, आई एम गुड विद संस्कृत, सो इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई थी। दम लगा के आयशा कंप्लीट हो चुकी है, ऑलमोस्ट एडिट होने वाली है, इट विल बी रिलीजिंग नेक्स्ट ईयर। आई थिंक मेरे मेंटोर दो हैं, एक सुजीत सरकार है, दूसरे आदित्य चोपड़ा है। Besides talent, what are the other factors one needs? Like, without what are the factors? I think basic wisdom. Despite, I think talent के अलावा अगर आप में थोड़ी सी wisdom है कि आप choices ठीक रखें या फिर अपना mind थोड़ा सा sane रखें, आपको किस तरह behave करना है पब्लिक में वो आना चाहिए। I think ये 2-3 छोटी चीज़ें होती हैं, आपकी upbringing पे depend करती हैं। I think वो बहुत काम आती है। That you're bringing sexy back. यही मेरा प्लान था, थैंक यू। I hope that's a compliment. Of course it is. You've been working out a lot, right? But I want to say I've been working out a lot, huh?
बिकॉज देयर इज अ स्टोरी परिणीति कि आप अपने वेट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं एंड आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, अपना वजन कम कर रहे हैं, इज दैट ट्रू? ओके आई एम लुकिंग सेंटर। और नहीं, एक्चुअली मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ कि मुझे 2 साल हुए हैं और मेरा पूरा पहला साल इसी में बीता कि अरे ये अच्छे कपड़े नहीं पहनती और ये अपना वेट नहीं कम करती। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी उससे, क्योंकि मैंने कहा आप मेरी एक्टिंग के बारे में अच्छी बातें कहते हैं, आप मेरे कपड़ों के बारे में भी कहें, तो मैं उससे परेशान हो गई। तो मैंने कहा अब मैं फ़ैशन में इंटरेस्ट लेने वाली हूँ और मैं वज़न कम करने वाली हूँ। तो आई थिंक वो शायद थोड़ा दिख रहा है अब। यस, आलिया इज़ माई जिम ट्रेनर। वो खुद मुझे ट्रेनिंग करवाती है जिम में। नहीं, नॉट एट ऑल। ओके, हाँ, परिणीति, बॉलीवुड बडी, राइट? दैट बडी ट्रेंड। यस, बॉलीवुड बडी। या बन के आया है, तो क्या चीज़ आप देख रहे हो जब न्यू कमर्स आपके सामने आते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो क्या क्वालिटीज़ आप उनमें देख रहे हो? यू नो, एक्चुअली मुझे बहुत अजीब लगा था पहले दिन शूटिंग पे, क्योंकि मैंने कहा मैं कौन से एक्सपीरियंस से जज बन गई। यू नो, क्योंकि आपको हमेशा अजीब लगता है कि आप किस औकात से आप जज बन रहे हैं। तो मैंने जब पहला कंटेस्टेंट देखा तो मैंने इंस्टिंक्टिवली अपनी पर्सनल एडवाइस दी कि यू नो मुझे ऐसा लगता है अगर आप सेट पे ऐसे होते तो आप ऐसे करते ऐसे, एंड उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे जज बनने की ज़रूरत नहीं है। यू नो, आई कैन जस्ट बी कि जैसे उन्होंने मेरे एक रूम में उनको मुझे दिखाया कुछ करके और मैं उनको एडवाइस दे रही हूँ, यू नो। तो आई थिंक उस औकात से आई थिंक मैं उनकी दोस्त हूँ। जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उनके हिसाब से मैं उनको एडवाइस दूँगी बस। Parineeti, every Friday there are a lot of star daughters and star sons just making the entry in the Bollywood. Yes. So Sorry, please थोड़ा साइलेंस रखिए। Yeah. So do you think that Bollywood is just getting a bias like to the stars and daughters? No, not at all. I don't think so. क्योंकि यू नो, आई थिंक जो लोग एक्टर्स नहीं हैं या जो लोग इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हुए, उनको लगता है अरे ये तो उसकी बहन है और ये तो उसके बाद है तो उसको तो फिल्म मिल गई होगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो डायरेक्टर होता है और जो प्रोडक्शन हाउस होता है वो आप में इन्वेस्ट करता है। तो आजकल तो बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आप किससे रिलेटेड हैं, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो खुद डिसीजन लेता है, वो जो डायरेक्टर है वो खुद डिसीजन लेता है कि आप कैरेक्टर के लिए सही हैं या नहीं। तो आई डोंट थिंक कोई बायस है एट ऑल। आई थिंक वो लोग भी उन लोगों को ही लॉन्च कर रहे हैं जिनको जो उनकी फिल्म को कोई फ़ायदा करें, जो ऑडियंस को पसंद आए। आई डोंट थिंक कोई बायस है, मुझे ऐसा लगता है। नो, दैट्स अनट्रू, ये झूठ है। हाँ, Why Shraddha worked with Mr. Bachchan also, no? Yeah. उससे ज़्यादा न्यू, वो तो न्यू कमर नहीं है। आपका सवाल क्या है? डायरेक्टली पूछो। ऐसे घुमा मत। हाँ? मेरी तो हो गई साइन यार। I think people don't know, but I would like to officially announce that I have signed a film with Saif. Dinu. मैं बताना भी नहीं चाहूँगी उस दिन मेरे क्या इमोशंस थे। So I have signed a film with Saif, who is my favorite actor. Dinu is directing that film, who is Dinesh Vijan. He is Saif's partner. So yes, I have signed a film. But like the cliche of actresses can't be friends is fading away. We saw you at the Asian Film, and you, Shraddha and Alia have constantly been competing against each other. I don't know why, because we are great friends. I don't understand why, really. And it's very strange that people say actors can't be friends. In fact, we only chill with each other. Like even today is Arjun's birthday, we'll all be chilling and partying together. It's just we are together at parties all the time. So I don't know why there's this thing of being against each other, because it's not true at all. So with Alia and Shraddha, it's like very cool. Yes, very cool, very cool. परिणीति कभी ऐसा हुआ कि किसी फिल्म का आपने ऑडिशन दिया हो और बाद में आपने वो फिल्म नहीं की हो, जिसका पछतावा हो, बाद में वो फिल्म कोई ऐसी फिल्म? एक्चुअली मेरी पहली पिक्चर के बाद मुझे कोई ऑडिशन देना नहीं पड़ा, क्योंकि आई थिंक डायरेक्टर्स ने मुझे बुलाया, क्योंकि वो मेरी फ़िल्म शायद देख चुके थे, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली बुलाया और उसके लिए ऑडिशन नहीं हुआ। लेकिन नहीं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। आई थिंक जिन पिक्चरों को मैंने नहीं कहा है, आई थिंक मैंने ठीक डिसीजन लिया था अपने लिए। कोई ऐसी फिल्म है जिसमें आप खुद अपने आप को देखना चाहती हैं, जो लेटली कोई ऐसी फिल्म देखी जो आपको बहुत पसंद आई? बहुत पसंद आई। मैं हमेशा कहती थी बर्फ़ी। आई थिंक बर्फ़ी एक पिक्चर थी जो हर एक्टर को करने का मन है, क्योंकि वो रोल्स ऐसे कभी लिखे नहीं थे और आई डोंट थिंक इसके बाद कभी लिखे जाएंगे। तो आई थिंक बर्फ़ी इज़ दैट फिल्म। यस, वेरी मच, वेरी मच। परिणीति, आप सिने स्टार जो सिने स्टार को जो शो है आप देखेंगे रोज?
आई होप सो, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं देखने वाली हूँ। आई स्वेयर कुछ टाइम नहीं होता है, नहीं तो मैं बहुत सारा टीवी देखूँ। जितने भी शोज़ हैं मैं देखना चाहती हूँ। आई स्वेयर मुझे टीवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन टाइम नहीं होता है। टाइम ही नहीं होता है यार, बिल्कुल टाइम नहीं होता। गाइस सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। One second. So I remember you saying that you were managing Rani when Manish told you to audition. Yeah. Ladies was Yeah. So and you told Rani that you're Priyanka's sister. Yeah. So Yeah. do you think Priyanka's stardom somewhere affected your success today? I don't know. I seriously don't know because I mean you guys must have watched my films. Do you get affected by the fact that I don't think so. I don't think audience जब 300 रुपये खर्चती है टिकट पे, वो ये नहीं बोलती अच्छा मैं इसको पसंद करूँगा क्योंकि ये इसका बेटा है या इसकी बेटी है. I don't think they get affected, and that's the only thing that matters. So I don't think somebody's relation can affect your success at all. That's what I genuinely feel. जी सॉरी, एक सवाल अभी हुआ है. सॉरी 1 सेकेंड. हाँ, मैंने उनसे एक्चुअली एक बार एक पार्टी में बोला था कि मैं आपके हस्बैंड की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो उन्होंने बोला था इट्स ओके. तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो अप्रूवल मिल गया, अब मैं इनकी फ़ैन बन सकती हूँ. बट दे आर वेरी स्वीट. आई थिंक सब लोग खुश हैं क्योंकि सबको पता है कि मैं कितनी बड़ी फ़ैन थी उनकी. तो मेरे मतलब सब लोग ही खुश हैं एक्चुअली. I don't think there's any. Last question. On popular demand, your question. सब चाहते हैं आपका सवाल सुनना. मैं फिल्मों के अलावा आपसे कुछ जानना चाहती हूँ. बजट आने वाला है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है बजट को लेकर? रेल बजट आ रहा है, आपकी कोई रेल के साथ मेमोरीज है, एनी ट्रैवल मेमोरीज, और प्रोबेबली आपको लगता है आम बजट को लेकर कोई? आई थिंक हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन, और मुझे ऐसा लगता है अगर बजट उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशन एक्चुअली, अगर वो बढ़ जाए तो बाकी सब ठीक हो जाएगा. थैंक यू.